Welcome everybody, and everybody can switch on their cameras so that we can speak each other. Yeah, Venkat. ललित भाई आप आ गए तो हाय हाय वेंकट लक्ष्मी देवी वेलकम यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा लक्ष्मी हाय हाउ आर यू आर ऑन म्यूट लक्ष्मी देवी Actually, she is my previous employee colleague, Lakshmi Devi. Okay. I invited her to join today. Okay, great. So, Lakshmi understands any Hindi? No, she understands only English, but that much of not fluent in English also. Yeah. So anyway, I'll be speaking only English. It's yeah. Not very comfortable. But why she is not on camera? Is she a bit shy? Something? Maybe. Lakshmi, మీరు వీడియో కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. Yeah. Yeah, great. So how are you, Lakshmi? You are for the first time here. How is everything? How is life? You are on mute. Just unmute yourself so that we can hear you. Razia also is your guest? Yeah. Okay. Yeah. So anybody will speak as to what is happening in your life, how it is going, and what do you expect from here? A bit from my side is I actually help first time managers who actually first time managers means first time into that particular profile now, where there is a lot of confusion happening because of change of profile, a change of responsibility, and change of style, and in life, if you see, there are only three things which we are concerned about. One is time, the second is people, and third is self. No, how would you handle anything in life if you cannot handle yourself? So you agree with that? Or do you think there is something else also which is very, very important? What is your take? Tell me that. Razia or Lakshmi Devi, where is Lakshmi Devi? Can you tell me? Lakshmi Devi, would you be able to tell anything else happening in your life which is important than these three things that I have spoken? I have spoken about three things. All we are concerned about is time, people, and ourselves. How we think about ourselves, how people will think about ourselves, and third is how we manage time so that how people will think about us when we are no more there, right? What I call as our legacy, right? So these are the three things that we need to know. Let me start sharing this PPT then. If you people are not talking, then let me share the PPT so that we can start talking. Is that okay? Generally, people will think depend on their trust, their impression about us. So that depends upon trust. If you trust more than
So what we expected, they will talk positively. Otherwise, they will talk in their own impression. Yeah. No, that is fine. Can you stop doing that? Like, say, can you stop anybody? We can't stop. We cannot stop. What can we do? What can we control actually? Ourselves, we can control our tasks. But so outside, we are not able to control what they are speaking. We have to control ourselves also. Yeah. So suppose somebody is thinking about you in a certain manner. In a certain manner, it is not positive, not negative, anything he or she can think. Then how do you take that? How it affects you? Can you tell how it affects us? About me also, people will be telling 3-4 things, right? Yeah. So, what do you think I should do? If you are an advisor, I am asking you for advice, then what advice you will give me? Generally, हमने तो इसके लिए तो ज्यादा नर्वस होना नहीं है, हमसे चलते रहना है बस. तो वो लोग जो बात कर रहे हैं उसमें तो जो पॉजिटिव है हम लेना है बस. तो जो नेगेटिव को छोड़ना है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया. इससे पहले उससे ऊपर हमने कुछ बेनिफिट नहीं दिया, नहीं तो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तब क्या करना है उसके ऊपर ध्यान करके हम हमारा ज्यादा हार्ड वर्क करना है, फोकस करना है बस. Okay, I'll give one perspective here, Venkat. Just look at the screen. Everybody is able to see my screen, right? Yeah. Okay. So I'll give you something. Let me show you what I am giving you. What are you able to see? Are you circle? Circle, right? Circle, man. Now what? Another circle. Another circle. Sorry, I couldn't hear you. So what is the difference in another circle? Color. Color. So we'll call this as, let me put here. I'll give one name to each of these circles, right? I'll call it as influence. Able to see? Able to see now? Yeah. What I have written? Influence. Influence. Here also I'll give this. So this is this circle's name is influence, right? And this is concern, right? Can you see now? Can you see all three of you? 3, 4, whoever is there. Can you see? Yeah. Second one is concern. Second one is concern. So both of these are inside your mind. And the third thing is, as you were saying, I'll add another one. And I'll give some color to it also. This color. And right? Can you see? Yeah. So what is the name of third circle? Hard work. Hard work. Now these are the 3 things we are concerned with at workplace, right? We do hard work,
We influence people. We influence people, and what about concern? Concern or worries? Based on our influence, the people will they will tell their own concern, what exactly they are thinking about us. Yeah. And okay. So here I'll say that suppose you are a person who has high influence, right? So so what percentage you will give to hard work? What percentage you will give to concern and worries? Tell me what percentage? 80-20. This is 80. No, this is influence is 80. No. You are a influential person. So you are able to influence with hard work and by lessening worries. That is what you are saying, no? Yeah. Or what are you saying? So because in the beginning you were saying that we cannot influence, we cannot control other people. We can control ourselves. So we are, everybody, each of us has three aspects in us. One is hard work, our honesty, integrity, hard work, everything is hard work. Let us say. Yeah. We are bothered, no? We are worried, we have concern. That is another aspect of us. We have doubts, we have less skill. That is what we think, right? All those things are in concern and worries. And also we have some kind of influence. So what is leadership growth? When you have more influence than hard work and concern, then that is what leadership growth is all about, right? Yeah. So that is why I am asking. Hard work is 80, concerns 20. 80 and concern is 20. So why do you think it is this the same? Everybody is thinking the same? Not exactly. This is my perception only, I am saying. Yes, you were saying this is Venkat. And what about Razia, and what about Lalit Bhai, and what about Lakshmi? All of them are there, right? Everybody can. Madam, hard work 60%. Hard work is 60, right? And influence 20%. Concern worries 20%, madam. You are saying hard work is 60. Then you are saying concern is concern is how much? 20. And influence is 20, right? Now, she can tell you same numbers or something else. I'm not able to hear you, Razia. Anybody is able to hear? Razia, can you write the chat? Can't repeat. Once again. Is this the same number or something else? No, madam, same. Same. Acha. So now tell me, all of you, will you be happy if you do this?
Venkat says he will have no influence, only hard work and concern. And both of you say that you will have 60 minutes. Will you be happy? Like, answer that question, please. मैडम एक छोटा छोटा बात मैडम, हाँ. Yeah, 1 second madam. If we have to reach our goals, we have to hard work, ma'am. We have to do hard work. Yes, hard work. Next, we have to do anything. Like for example, madam, I will speak in Hindi, ma'am. हाँ, हिंदी. Yes, yes. अब हम कुछ चीज पाना चाहे तो वो हमसे नहीं हुआ तो दूसरा का इन्फ्लुएंस से तो भी हम कर सकते हैं ना मैडम? Yes. Okay. वो एक कंसर्न एंड वरीज बोले तो अब वो एक पर्सन में था मैडम, एग्जांपल को उससे कुछ होना बोले तो हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट करने तो जरूर होता, वो भी एक कंसर्न दिखाना चाहिए एक पर्सन के ऊपर. वरीज बोले तो एग्जांपल अब मुझे कोई तो भी प्रॉब्लम्स आ पड़े तो वो भी एक डिप्रेशन वरी आ जाता ना. Yeah. So now I am asking about another thing. मैं पूछ रही हूँ what about your happiness? क्योंकि ले दे के लास्ट में we all need to be happy ना. Yes ma'am. हार्ड वर्क कर करके मर गए, वरीड हो के मर गए, थोड़ा बहुत वरी भी आता है. लाइक से इवन इफ यू आर से 80% हैप्पी, 10% कंसर्न भी, वरीज भी आ जाता है, देन वी आर वेरी अनहैप्पी. ऐसा कभी देखा आपने? देख थोड़ा मैम, थोड़ा देखा. तो अभी एक मैजिक करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है मैडम. हाँ, तो ये मैजिक में ये हार्ड वर्क है, राइट? इसको छुपा दिए. अच्छा मैम. ये कंसर्न है, ठीक है? हाँ मैडम. इसको भी छुपा दिए. नाउ व्हाट वी हैव? इन्फ्लुएंस. ओनली इन्फ्लुएंस. देन यू विल बी हैप्पी कि नहीं? वी विल बी हैप्पी कि नहीं? हैप्पी मैम. कितना हैप्पी? 30%. कब 100% हैप्पी होते? 100? जो भी हमारे गोल्स जब हम रीच होते ना मैडम, जब 100% हमें रीच होते, जब 100% आप गोल रीच होते ना, तभी जाके इन्फ्लुएंस आपका बनता है. मैडम वांट्स आर अनसैटिस्फैक्शन मैडम, कितना भी हो, कितना भी वर्क हार्ड करे तो भी वांट्स अफेक्ट्स सैटिस्फैक्शन, ये तीन तो लगातार होता रहता नहीं. मैं क्या बोल रही हूँ, जब आपका गोल रीच होता है ना, मान लीजिए कि कोई बंदा आपसे काम करवाता है, ठीक है? हाँ मैडम. और आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको चटनी भी, चमचा भी, तेल भी मार रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा वरीड भी है, फिर भी आप गोल नहीं रीच कर रहे, राइट? हाँ मैम. हाँ मैम. तो वो कभी आपसे खुश होगा? नहीं होगा मैम. आप खुश होंगे खुद से? नहीं मैम, नहीं होगा. सो एसेंशियल क्या है? गोल रीच होना. रीच हाँ, गोल रीच होना. गोल जैसे ही रीच होता है सभी को ही खुश होते हैं. आप चाहे 20% हार्ड वर्क करके उसको रीच किए हो, इसीलिए तो स्मार्ट वर्क के बारे में बोला जाता है, राइट? ओके मैम. तो 20% जो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको वरी थोड़ा कम करना पड़ेगा. यस मैम. अब कोई बॉस जैसे ही बात किया, वो कैसे करे, अगर हो गए ना, यू आर वरीड. अब ऐसे जब भी आप करते हो काम, आपका गड़बड़ होता है. हाँ मैडम, सही. So now what? अभी लीडरशिप ग्रोथ में क्या होता है कि सबसे फोकस आपका गोल अचीव करना, ये सभी को ही जानता है, राइट? हाँ मैम. अब वो गोल अचीव करे और खुश नहीं हो, देन वो गोल हो नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में? यू आर नॉट हैप्पी ना. सही मैम. तो 3 चीज आपके होने चाहिए. इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, गोल रीच भी होना चाहिए,
और यू शुड बी हैप्पी। मानते हैं ये बात? हाँ मैम। हाँ, तो अभी 3 चीज क्या क्या हमको चाहिए? अभी हमने वरीज और हार्डवर्क को छुपाया, और अभी हम 3 चीज पे फोकस करेंगे। एक तो क्या? इन्फ्लुएंस। पहले तो इन्फ्लुएंस अभी दिख रहा है करके इन्फ्लुएंस लिखते हैं, ठीक है? दिख रहा है इन्फ्लुएंस, तो उसको लिखा, ठीक है? सेकेंड इज व्हाट? हैप्पीनेस, राइट? यस मैम। आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। प्रेजेंटेशन में अभी दिखा ही नहीं रही अभी। अच्छा, शेयर स्क्रीन नहीं किया क्या? हाँ हाँ, अभी दिख रहा है? आ रहे हैं, हाँ, यस। सो फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस, सेकेंड इज हैप्पीनेस, थर्ड क्या बोले? हार्ड वर्क, गोल्स। हार्ड वर्क कभी आता ही नहीं है। गोल्स। What I'm trying to say. Hard work should be replaced by smart work. ओके। ये स्मार्ट वर्क कैसे करे? सारा बुद्धि इसी में लगाना है, राइट? सारा बुद्धि इसी में लगाना है, स्मार्ट वर्क। और ये स्मार्ट वर्क जो है, ये कभी भी बिना हैप्पीनेस के नहीं आता। Why? आप अगर खुश नहीं हो, if you are not happy doing something, your work will take lot of time. जैसे ही आपका स्मार्ट में टी इज टाइम ना, स्मार्ट वर्क पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, एंड ambitious, no, not ambitious, actionable. actionable, sorry, yeah. Actionable. आर में क्या? आपको पता है? रजिया, लक्ष्मी, आप भी बोलो, स्मार्ट में आर क्या है? नो मैडम। पता है? ये बताओ पहले, स्मार्ट में क्या है? सूक्ष्मंगा चेयडम। मैडम बता रहे हैं मैडम। हाँ, क्या बताओ? लक्ष्मी मैडम तेलुगु में बता रहे हैं। हाँ, एक बार देखिए। क्या है? ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है, राइट? रियलिस्टिक। यस। सो व्हाट डज इट मीन? ये जो हम बात कर रहे हैं ना, व्हाट डज इट मीन? टाइम, अगर आप अगर खुश नहीं हो तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आप अगर रियलिस्टिक नहीं हो, देन यू विल बी थिंकिंग कि अच्छा ये कर दे तो ये हो जाता है, वो कर दे तो वो हो जाता है। यू आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, राइट? Yeah. Assignable, actionable, right? You should be able to do it. अभी आपको मैं बोलूं कि वो चीज अगर आप यहाँ से उड़ गए पर लगा के, देन आप वहां रीच कर सकते हैं। कभी आपके विंग्स तो नहीं बनेंगे ना। कैन यू हैव विंग्स? नहीं होगा ना। सो दैट इज नॉट एक्शनेबल। तो देयर हैज टू बी सम एक्शनेबल पॉइंट एंड मेजरेबल, मतलब कि जो भी आप काम करें, जो मैं आपको बार बार बोलते रहती हूँ कि देयर हैज टू बी अ नंबर क्वांटिफाइबल, कि आपने इतना किया उतना किया। तो नहीं तो फिर आप कैसे इवैल्यूएट करोगे खुद को, राइट? कोई भी काम किया तो सपोज यू हैव टू राइट ए रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू यू हैज टू बी ऑफ 5 पेजेस, ठीक है? Now, if you have written say 2 pages, suppose that report has to contain 10 points, and you have covered only 5 points. Now, in number term, आपको पता चल रहा है ना कहाँ पे हो आपका रिपोर्ट, कहाँ पे है आपका रिपोर्ट, right?
क्वांटिफाइबल नंबर्स में पता चल रहा है कि 10 पॉइंट कवर होंगे तो the report will be 100%. If it has only covered 5 points, then it is only 50% covered, right? Yes, no, कुछ तो बोलो. Yes. So all of your work has to have a number so that you can measure your work. And if every day you measure your work, then it becomes smart work. क्योंकि whatever gets measured gets executed, implemented. जो भी आप मेजर कर रहे हो, like say suppose you are losing weight, ठीक है? Every day if you are not taking your weight, आपको पता कैसे चलेगा कि you are losing weight? बोलेंगे नहीं मेरा पेट कम हो गया. कम तो हो गया ना भाई, कितना कम हुआ? That is again a number. समझ में आ रहा है? Yes, no. Anybody agrees? Doesn't agree? कुछ भी तो बोलो. समझ में आ रहा है मैडम. So what happens ultimately? It is your smart work with happiness, which has a goal, and at the end of it, you are able to impress somebody. That is how. जब आप influence करते हो तो क्या करते हो? You are able to impress somebody. That is how that person gets influenced. Okay, agreed on this? Agreed on this? Yeah. So anybody has any other point? Tell me. किसी को और है तो बताओ. Am I audible? Yeah, madam. So are you thinking in this line, or you are thinking some other questions coming to your mind? वो भी बताओ so that we can हैंडल. मैं तो प्रेजेंटेशन, मेरे पास एक 200 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बना हुआ है. मैं बोल देने से क्या होगा? इफ यू कांट टेक एनीथिंग, आप अगर पार्टिसिपेट करोगे ना, रेस्पॉन्ड करोगे, देन ओनली आई कैन गो अहेड, राइट? डन? या. सो रजिया एंड लक्ष्मी बोथ आर ओके? ओके मैम. हाँ, ललित भाई आप भी बीच बीच में बोलते रहिए. एंड राजीव आई थिंक हैज जॉइंड. Yes, Rajiv also has joined. आप भी कुछ बोलिए, राजीव. Thank you. Sure, ma'am. I'll contribute. Yes, sure. Yes, please. And आप लोग ना ये थोड़ा सा वीडियो ऑन करके रखिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ. And who is Data Communication? भाई आप अपना नाम लिख दो तो पता चले. You have invited Venkat? No. Datta Communication. Somebody. I don't know. Yeah, I'm Hari Prasad. Yeah, Hari. Oh, he is also my friend only. Hari Prasad, yeah. You are only. Yes. Yeah, okay. hi. Okay, you can rename yourself, yeah. You can. So let us get back to, yeah, hi Hari. Yes. Okay, so from here let us get to the next slide, right? So as I said, do you love what you do? If yes, then your work is meaningful for your life. If you are doing something you don't love, then start loving it. और अगर एकदम से नहीं पसंद आ रहा है अपना काम तो छोड़ दो इसको. You are wasting your time. जैसे अभी हमने डिफाइन किया ना, you need to love your work, then only you can influence someday. You can impress somebody क्योंकि you love your work ना. दिल से काम कर सकते. दिल से काम नहीं कर रहे हैं तो you cannot impress anybody. No, you are not loving yourself. You cannot impress anybody. क्या काम करके फायदा क्या? Right? So you have to create something. Love for the work you need to create. नहीं create कर सकते, छोड़. It should be told the other way around. Love what you do what you love. Right? Love what you do what you love. इसमें से एक भी होगा तो चलेगा. Next, showing your relevance. और उससे meaningfulness आता है. अभी इसमें से relevance आएगा. What is that one thing nobody else can do? So how you will be relevant?
कोविड के टाइम में जितने सारे वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग थे ना, दे वर लेड ऑफ, उनको नौकरी से निकाल दिया। Why? Because they couldn't prove their relevance in that particular scenario. किसको किया, किसको रिटेन किया? Those people were retained. Those people who could do some operation and some strategy. Some operation and some strategy. जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे वो स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, एग्री? स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, एंड उससे नीचे जो होते हैं दे मैनेज, दे इम्प्लीमेंट, दे एग्जीक्यूट, एग्री? इफ यस, देन वही लोगों को रिटेन किया गया, क्योंकि उसमें तो कॉस्ट कटिंग हो रहा था ना, बजट वाज श्रिंकिंग, तो कॉस्ट कटिंग में क्या करेंगे? वही लोग जो somebody else also has joined, thank you. So अभी तो बोलो, कोई बोल नहीं रहा। Are you not able to understand what I am trying to say? How you will be relevant if you are not relevant for your work? आप अगर relevant नहीं हो अपने काम के लिए, अपने काम में, then why you will be retained? Relevance होना चाहिए ना, और relevance कैसे होगा? You will be doing something which nobody else can do, right? ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, दूसरे नहीं कर सकते? एक्चुअली हर एक काम जो आप करते हो वही आप ही कर सकते हो। Do you agree with me? वही सेम काम अगर मैं करूं, वही सेम काम अगर ललित भाई करे, और सेम काम अगर वेंकट करे, all three will be very different and we can only do. मैं जिस तरह से करूंगी उस तरह से ललित भाई नहीं करेंगे, ललित भाई जैसे करेंगे वेंकट नहीं करेगा, इस तरह से होता है। Why? Because we three people are very different people. ठीक है वेंकट, agree? Yeah, madam, agree. So because we are very different, that is why we can have relevance. But हमको वो काम भी तो करना आना चाहिए, and we should love that one. The third thing is becoming your way. जो have you made the work a dream one? प्यार ही नहीं है आप जो काम करते हो, वो ड्रीम कैसे हो जाएगा? मैम ये बिना साउंड आ रहा है बीच में ना, सॉन्ग काइंड ऑफ। वो साउंड क्या हो रहा है ना, हमारे कॉलोनी में कुछ हंगामा है, पता नहीं क्या। ओके हाँ, फिर तो वो तो ठीक। हाँ जी, तो ये हाँ, और मैं वॉइस को कैंसिल नहीं कर पा रही हूँ समा। एनीवेज, तो सुनाई तो पड़ रहा है ना राजीव? हाँ, आवाज आ रही है, बट वो जैसे साउंड थोड़ा सा ना ज्यादा हो जाता है। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा हंगामा है, वो पंजाबियों का मोहल्ला है ना, तो इसमें थोड़ा सा हंगामा और भी थोड़ा ज्यादा है। समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी बात। तो एनीवे, सो हाँ, अभी जो बात कर रहे थे, इफ यू डोंट लव योर वर्क, जो आपका प्यार ही नहीं है, वो आपका सपना कैसे हो सकता है? प्यार तो सभी कोई किए होंगे ना, राइट वेंकट? या हाँ, सो इफ यू डिडंट लव समबडी, हाउ कैन दैट पर्सन बिकम योर ड्रीम, राइट? The same thing goes for your work also. If your work is not what you love, then it cannot be your dream work, right? That is the third thing. And the fourth thing is, if you have said no to everything else, are you losing time? ये भी realization लोगों को नहीं होता है, right? We keep on doing the same thing. We always torment ourselves by doing something which we don't like, और हम वही सेम काम को करते रहते हैं, और हम खुद को ना, हम रिएक्ट भी नहीं करते। We don't try to figure out कि क्या गड़बड़ है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। We don't figure out, और हमारे दिमाग में ना कंप्लेन चलते रहता है कि बॉस अभी थोड़ा सा उसमें से बॉस कुछ बोल दिया, नहीं पहले से ही आपको गुस्सा आ रहा है, अभी वो बॉस कुछ बोल दिया तो और भी गुस्सा बढ़ गया, राइट?
तो इस तरह से कंपाउंडिंग हो जाता है. सो नेगेटिविटी गेट्स कंपाउंडेड. मेरे घर में 2 डॉग हैं, तो अभी क्या करेंगे, ऑल दिस हैज ए स्ट्रेटेजी कि कैसे करेंगे इतना सारा. ये प्यार कहाँ से शुरू करेंगे, ये ड्रीम कहाँ से लाएंगे, ये लव फैक्टर कैसे ऐड करेंगे. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी. एक क्लू है जिससे हम ये सारा कुछ कर सकते हैं. राइट, सिंपल क्लू तो मैंने बता दिया कि इफ यू स्टार्ट लविंग योर जॉब, योर वर्क, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जॉब है या फिर व्हाटएवर यू आर डूइंग, अगर उससे प्यार है तो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी. बट वो प्यार कहाँ से पैदा करे, दैट इज द सेकेंड थिंग. तो थोड़ा सा अपने ब्रेन को ना मैकेनिज्म दे कि कैसे वो प्यार पैदा करे. नाउ इंडिकेटर्स क्या है कि कैसे पता चले कि आपका लव पैदा हो रहा है, या फिर आप उल्टा कैसे कर सकते हैं, लव पैदा कैसे कर सकते हैं. इसमें 3 इंडिकेटर होता है. एक तो रिजल्ट्स आप जान सकते हो, जैसे ही आप क्वांटिफाई करते हो ना, पहला स्लाइड में हमने बोला कि नंबर से आप क्वांटिफाई करते हो. लक्ष्मी, आर यू देयर? लक्ष्मी एंड रजिया, आर यू पीपल देयर एंड अदर्स आल्सो? यस मैम. हाँ, so keep saying yes, yes, right? So that I can hear. Both are here. The first thing is results will be apparent. Everybody can see. कल आपने 4 किया तो 4 पे थे, आज 5 पे हो. So you are progressing, right? The second is growth trajectory. वही same चीज, आपका growth trajectory should go upwards. कल 4 किया था तो आज 3 तो नहीं हो सकता, और ज्यादा करना पड़ेगा. क्या 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 हो सकता है, आज एकदम घटिया किए तो भी 4 पे ही रहोगे. इसका मतलब क्या, आपने कोई काम ही आज नहीं किया. सो रिजल्ट तो है कि 4 पे आप आ गए, लेकिन कल भी 4 पे थे, तो आज आपका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अपवर्ड नहीं है. सो मॉनिटर कीजिए कि इट शुड ऑलवेज गो अप. कल 4 और आज 5 नहीं हुआ, मतलब योर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज फ्लैट, इट इज नॉट अपवर्ड, उस पे रही. एंड थर्ड थिंग इज वेरी शॉकिंग, यू हैव टू ट्रेन पीपल टू रिप्लेस यू. आप दूसरे को इतना ट्रेनिंग दे दो कि वो आपको रिप्लेस करे. इसी बात पे मेरा बहुत सारे लोगों से झगड़ा हो जाता है. कैन एनीबडी डिफेंड कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ? जनरली क्या बोलता है कि जो भाई बाकी का पीपल को मेरा स्किल सेट वो ट्रेन करे तो मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ रहेगा इसमें. यस. तो इसीलिए कुछ लोग डरता है कि पूरा जो मेरा स्किल सेट है वो दूसरों को मैं ट्रेन नहीं करता हूँ, थोड़ा छुपाता हूँ बोल के सोचता है. मगर वो तो करेक्ट नहीं है. हम ग्रोथ चाहिए, करियर में चाहिए तो कंपलसरी हम तो नीचे का जो हमारा टीम मेंबर्स को ट्रेन करे तो हमको वो रिप्लेस करेगा. हम हमारा जो काम है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा वो लोग, अब तब हमारा ग्रोथ फैक्टर आता है इजीली. यस. सो दैट इज व्हाट यू गॉट आफ्टर आई ट्रेन यू, विंकर. सो किसी और को भी बोलने दीजिए कि आर दे एग्रीइंग टू दिस. टोटली एग्री मैम, बिल्कुल सही कहा आपने. हाँ, बिल्कुल तो सही कहा. क्या है कि आज अगर आप मैनेजर पोस्ट पे हो, नेक्स्ट ईयर आप सीनियर मैनेजर पोस्ट पे जाओगे, या फिर नेक्स्ट ईयर आप वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे जाओगे. एंड एज सून एज यू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट, आप मैनेजर का काम तो नहीं करोगे ना. सो इफ आप अपने सेकेंड और थर्ड रैंक को मैनेजर बनने के लिए नहीं सिखाया, तो ऑब्वियसली आप वाइस प्रेसिडेंट हो के भी आपको मैनेजर का काम करना पड़ेगा. कैन यू सी दैट? और अभी आपके पास इतने सारे काम है कि 8 घंटे से ज्यादा जा रहा है, और उस टाइम में एक वाइस प्रेसिडेंट का भी काम करो और मैनेजर का भी काम करो. आपके पास टाइम ही कहाँ बचा? आपने सोने के खाने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा. और आप किसको पकड़े हुए हो? आपके पास एक स्किल था, आप किसी को नहीं दोगे, जिद पे अड़े हुए. Can you understand, Lakshmi, Razia? If you don't understand, एक्चुअली लोग ना मैम हार्ड वर्क में ज्यादा विश्वास करते हैं, स्मार्ट वर्क पे फोकस ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि सारी जिंदगी मैं ही काम करता रहूं, मैं ही काम करता रहूं. हाँ. ये काम भी मैं कर लूं, वो काम भी मैं कर लूं, ऐसे भी मैं कर लूं. दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आ जाती है. बिल्कुल सही कह रहे हो. वो भी अगर है तो भी कोई बात है. आपको मैं बताऊं, एक लेडी स्टोरी बताती हूँ किसी की. जी जी. वो ना सुबह से शाम, उनको ना ये थोड़ा सा सफाई करने की आदत थी, सफाई करने की.
तो जी कोई उनको सफाई मतलब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है किसी किसी को कि हर चीज हाँ, को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल तो प्रॉब्लम उनको होती है। साइकोलॉजी बचपन से ये था कि कोई उनको ना कह दे कि आप तो कुछ जी नहीं करते हो, बैठे रहते हो, ये नहीं जी सुनना था उनको। तो वो क्या जी करती थी, सुबह से 4 बजे से उठ के रात के 9 बजे तक वो लगी रहती थी। किस कहाँ पे लगी रहती थी पता है? वो जी एक ही रूम जो उनका रूम था, उस रूम में पूरा दरवाजे, खिड़की, पर्दे और बेड और सोफा जो भी था, उस सबको वो बारी जी। बारी घिस घिस के उसका पोछा लगाते थे। ओ माय गुडनेस। अगर आप रोज काम तो वो कर ही रही है, अब आप उसको ब्लेम कर सकते हो? अब आप देखो सेम चीज वर्क जी प्लेस में लोग करता है, वही छोटा सा काम को लेके वो जी घिसते रहता है। और इसीलिए नारायण मूर्ति ने कभी बोला है कि अगर आप ओवर टाइम करते हो, आर यू वर्किंग, कि दिखा रहे हो, आर यू शोइंग अप? जी क्योंकि अगर आप 8 घंटे में अपना काम नहीं कर सकते, देन यू आर इनएफिशिएंट, राइट? तो सही बात है आपकी। इनएफिशिएंट बोल के बहुत सारे लोगों ने अभी बोलना शुरू नहीं किया, इसीलिए सभी कोई ओवर टाइम करता है और दिखाता है कि हम तो 7 बजे तक काम करते हैं, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैं आप लोगों को ट्रूथ बम डाल रही हूँ, ठीक है? ट्रूथ बम, अपने को खुद देखिए कि आर यू इन दिस आईना, ठीक है? एक्शन पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले आप प्रॉब्लम एनालिसिस करो, जो नॉर्मली होता है। प्रेजेंटेशन स्किल को ठीक करो, जो सीखेंगे आप, जो मैं सिखाऊंगी आपको। ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम, बजट एंड एचआर, अपना टाइम ठीक से बिगाड़ो, दूसरे का टाइम भी सही से यूटिलाइज करो, इससे क्या होगा? बजट आपका सही से यूटिलाइज होगा। और क्रिएट सेकेंड लाइन लीडर्स। एंड देन थर्ड उसमें होगा कि बहुत सारे लोगों को नए चीज इंट्रोड्यूस करते हुए एम्बिग्विटी होता है, कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को ओवरकम करो। ओवरकमिंग कंफ्यूजन इज ए मैनेजरियल ट्रेट। क्या आपको आता है? दैट इज ए हाई इंटेलेक्ट वाला ट्रेट। उसने कुछ, आपका बॉस कुछ बोलेगा, बॉस का बॉस कुछ बोलेगा, आपकी जूनियर कुछ बोलेंगे और दूसरे कलीग्स भी कुछ कुछ बोलेंगे। ऐसा कभी आपने देखा है? को एक बात को 10 लोग 10 तरह से इंटरप्रेट करते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट स्कीम बनाता है वो सारे इसीलिए नहीं यूजफुल हो पाते क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी इंटेंशन से बनाया, उसके पास आईएएस ऑफिसर ने किसी इंटेंशन से अपने दूसरे लेवल को कुछ बता दिया, वहां से दूसरे को गया, फिर तीसरे को गया, जब ग्राउंड लेवल पे गया ब्लॉक लेवल ऑफिसर को, उसको जो समझ आया वो that would be entirely different than what was the intention. तो कोई गवर्नमेंट स्कीम उससे सक्सेसफुल नहीं होता। रियलाइज करते हैं ये सब? तो ये तो बड़ी बात हो गई। एक छोटी सी बात अपने ही वर्क प्लेस में लीजिए, आप जो बोल रहे हो वो दूसरा कुछ और बोल रहा है। क्या आप एक चाय कप लेके दोनों ही, जो बंदा दूसरा कुछ बोल रहा है, सभी कोई जाके चाय के कप पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओवर ए कप ऑफ टी आप डिस्कस करते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ इसके बारे में, एंड यू आस्क द अदर पर्सन, भाई तू क्या सोच रहा है बोल, एंड तीसरा क्या सोच रहा है बोलो, चौथा क्या। ये बहुत कम होता है सरप्राइजिंगली। दिस इज सो वेरी, चाय सुट्टा पे तो सभी कोई जाते हो, एग्री वेंकट? चाय सुट्टे पे ब्रेक पे जाते हो ना सभी कोई, बट how many time do you go for a discussion over a chai? It is that simple. और मैं जो एक आपको स्टोरी बता रही थी लास्ट टाइम, द स्टोरी इज एक बंदे का किसी के साथ, वो कुछ बोल रहा है, बॉस ने कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, क्यों बोला करके उसने रिजाइन करके चला गया। अब 10 साल बाद दोनों मिले कहीं पे, चाय पे ही मिले, और बॉस को काफी खुश हो रहा है, भाई तू तो अचानक से रिजाइन करके चला गया, भाई कहाँ है क्या है? तो बातों बातों में वो दूसरे बंदे ने बोला मैं आपकी वजह से रिजाइन करके गया। क्यों? वो ही वाज इन शॉक कि भाई क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोला? आपने ऐसा बोला था। अरे भाई उसी टाइम बोल देता यार,
तो मैं माफी मांग लेता, नहीं तो समझा देता तेरे को। अब मैं क्या बोला था मैं भूल गया, मैं तो ऐसे नहीं बोला था। अब देखिए 10 साल बीत गए विद दैट कंफ्यूजन, और वो अपने दिमाग में वो वाला इंसिडेंस को लेके घूम रहा है 10 साल तक। आपको नहीं लगता दिस इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम? और वो कभी खुश भी नहीं था। जब भी उसके बॉस का दिमाग आता होगा, चेहरा दिमाग में आता होगा, वो गाली ही देता होगा, यार बड़ा ही घटिया आदमी था, ऐसे तो बोलता होगा ना। किसको फायदा हुआ इसमें? सो दिस इज द पावर ऑफ एम्बिग्विटी, ओवरकमिंग एम्बिग्विटी। आप आज के आज जिसके साथ भी आपका झगड़ा होता है ना, बात कर लोगे ना 5 मिनट में वो रिजल्व हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आप बात नहीं करते, उसको लिंगरिंग करके ले जाते हो, अगले दिन और कुछ जुड़ जाता है, तीसरे दिन और कुछ जुड़ जाते हैं, वो बड़ा हो जाता है। आप अलाउ करते हो उसको बड़ा होने, खाली पीली, राइट? एंड द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज। कभी कभी क्या होता है, पावर इक्वेशन, पावर डायनामिक्स आपके ऑफिस में होता है। एंड एज आई टोल्ड यू वेंकट, इट्स लाइक से मैंने आपसे पूछा तो बहुत सारे लोग पावर के सपोर्ट में जाते हैं कि पावर मुझे ऑथोरिटी मिल जाए, बट दैट ऑथोरिटी इज ऑफ नो काम जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बदल जाए। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शायद आपको एज वाइस प्रेसिडेंट कोई नहीं रिकॉग्नाइज करे, बट इफ यू हैव दैट एक्सपर्टाइज, सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइज अगर होगा, आप किस भी लेवल पे हो, यू विल बी मच sought after पर्सन, आपको सभी कोई ढूंढेगा। एग्रीड ऑन दिस? रजिया, लक्ष्मी, एवरीबॉडी? सो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज लीजिए। अभी बहुत सारे लोग, मैं सबको सिखाती हूँ ना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है बोल के आ जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में क्या है? इंग्लिश सीखना है। मैंने पूछा, भाई हिंदी में तू बता सकता है जो भी तुझे इंग्लिश में बोलना है, क्या हिंदी में बोलेगा? हिंदी में भी नहीं बोल सकता है। इसका मतलब आपके पास कुछ है नहीं बोलने को, तो आप हिंदी इंग्लिश लेके क्या करोगे? आपका मदर टंग है ना हिंदी, तो आप कम से कम हिंदी में बोलो, तेलुगु में बोलो, किसी में भी बोलो, बोलो तो सही। बोलोगे क्या? पहले बोलो। एंड क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं होता। सो इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अबाउट इंग्लिश एट ऑल, दैट इज अ मिथ। सेकेंड थिंग इज क्रिएटिंग ए सक्सेस मैट्रिक्स। आपका बॉस जब पूछे भाई क्या काम किया वेंकट, देन are you able to tell him in the terms of क्या आपने किया, what were the incidences? पहले तो आपको टॉप लाइन बोलना है कि क्या काम किया बोलने से ये काम हो गया, ये बोलना है। then he will be interested, अच्छा ये काम हो गया, so good work, कुछ बोलेगा। then he will ask another question, then you need to be ready with क्या अपॉर्चुनिटी था वहां पे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वो बोलेगा। अच्छा ये कर दिया तो तुम वहां पे भी कर दो, वहां पे भी कर दो। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें था, कंस्ट्रेंट्स थे, which और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थे जिसकी वजह से आप ये कर पाए। यहाँ पे दूसरे जगह पे शायद वो पैरामीटर्स बदल जाए। इफ यू डोंट नो हियर, हाउ कैन यू नो देयर, राइट? एंड इफ यू डोंट नो हियर, देन you will have a vague idea about your success. आपको वो conviction भी नहीं होगा, right? That is the second thing. Third is top line and bottom line. अभी देखिए, income of the company is bottom line, sales of the company is top line. अगर आप मैनेजर हो, आप स्ट्रेटेजिक हो, तो always sales of the company बात करो. That is what I told you, Venkat. You have to have the sales of the company. Sales आपका नहीं है, मार्केट है, तो you can talk about marketing कि कितना मार्केटिंग, कितने लीड्स आए, कितने कस्टमर्स जनरेट हो रहे हैं. That is your job, right? And how many customers, what is the target base reached? That is the job of your operation team, right? So you have to transition from there to here. Then subject matter expertise already I have explained. And ये subject matter expertise का एक और फायदा भी, once you retire, after you retire from your this thing, you can become an advisor, or you can become a coach, you can become a person who can mentor other people, right?
this has to be your natural transition from one stage to the other, right? You can create a legacy only if you have subject matter expertise. कुछ भी है, थोड़ा सा भी है, वो जो थोड़ा सा अगर किसी को नहीं पता होगा तो he will create a blunder, so you can actually contribute. छोटा सा ही चीज है, but if you know, then it is a knowledge, right? So छोटा बड़ा कोई knowledge नहीं होता. खाना बनाना बड़ा काम है, छोटा काम, बड़ा काम है, छोटा काम. Cooking food is a big thing, small thing. रजिया हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है मैम, बहुत बड़ी चीज. अच्छा चलिए, आपके लिए दूसरा काम बोलते हैं. आप कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगता है, वो काम के बारे में सोचिए, एंड उसका एक छोटा सा हिस्सा छोड़िए जो कि क्रिटिकल है. नमक, खाने पे नमक. दही तो सभी कोई खाते हैं ना, खाने में तो कोई दिक्कत नहीं. दही में कितना नमक डालने से वो सही टेस्ट देगा. छोटी चीज है, बड़ी चीज, छोटी सी चीज है, बट क्रिटिकल. Agree. So like this namak wala cheez, you need to know, right? That is what subject matter expertise is all about. Then being relevant, already I have spoken about. उसमें सर्कल ऑफ कंसर्न है, सर्कल ऑफ इंटरेस्ट है, सर्कल ऑफ यूजफुलनेस. आप सभी लोगों ने बोला, मैंने छुपा दिया था सर्कल ऑफ, इसमें इन्फ्लुएंस है, बट द मिडिल पोर्शन, द ब्राउन पोर्शन जो है ना, ये इन्फ्लुएंस. एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स योर रिलेवेंस. तो इसमें आप देखो, इंटरेस्ट भी है, कंसर्न तो है ही, यूजफुलनेस तो है ही. ये सारे का इंटरसेक्शन जहां पे होता है, दैट इज वेयर यू आर रिलेवेंट. और वहां पे आप डेप्थ क्रिएट करो, क्योंकि सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है. मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ. सर्कल ऑफ इंटरेस्ट, आपको ये काम नहीं, दूसरे काम में ज्यादा इंटरेस्ट था, मानती हूँ, एग्री, बट राइट नाउ यू आर डूइंग दिस. थर्ड इज सर्कल ऑफ यूजफुलनेस. आपके पास इतने सारे स्किल्स है, बहुत है, जो किसी और के पास शायद ना हो, लेकिन इस काम के लिए ये जो यूजफुलनेस अभी है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो ये आप यहाँ पे हो कि नहीं, इज दिस ये जो छोटा सा हिस्सा है, इज दिस रिलेवेंट फॉर योर कंपनी? अगर रिलेवेंट है, यू नीड टू क्रिएट योर डेप्थ इन दिस. डेप्थ मतलब क्या? गहराई, अपने ज्ञान की गहराई बढ़ाएं. हिंदी में लक्ष्मी और रजिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस बोलो. यस मैम. यस, ओके. द मोमेंट आई से ना डीप हिंदी में चली जाऊं तो बोलना, राइट? मैडम, लक्ष्मी मैडम के पास थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैडम थोड़ा डीप जाएंगे. देन लीडरशिप सिग्निफिकेंस. एक रिलेवेंस है, एक सिग्निफिकेंस है. जब आप सिग्निफिकेंट करते हो ना, आप खुद हैप्पी होते हो. रिलेवेंस में क्या है? दूसरे के लिए आप यूजफुल हो. बट सिग्निफिकेंट जब होते हो ना, आपको खुद को अच्छा लगता है कि कुछ तो अचीव किया. इसके लिए देखिए, आप कॉम्पिटेंस तो है ही, पैशन है, जो हैप्पीनेस और एक्सपर्टाइज बोल रही थी वो है. एंड देन दिस इज अ नीड which you are solving a problem. दूसरे के लिए आप यूजफुल भी हो रहे. That is what significance is all about. तो आप रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट ये होगी, तभी जाके आप पे ऊपर ट्रस्ट आएगा. यू विल बी हैप्पी, ऑल दैट थिंग. देखिए, छोटी सी बात है, इतनी सारी चीजें हैं करने को, राइट? और आप लगे थे हार्डवर्क में, उलझे हुए थे. खाली हार्डवर्क से नहीं होगा. नाउ हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू क्रिएट दैट काइंड ऑफ रिलेवेंस? अब यहाँ पे देखो, बहुत सारी चीजें, ज्ञान आपके पास है. दैट इज व्हाट इज डेटा. यहाँ पे एक डेटा पर्सन भी है, वो समझ रहे होंगे. अब ये डेटा को एक मीनिंग जैसे ही मिल जाता है, वो इंफॉर्मेशन हो जाए. इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है, तो दैट बिकम्स नॉलेज. एंड व्हेन दैट नॉलेज becomes very specific for your particular kind, जैसे मैंने अभी बोला कि दही में नमक कितना डालना, that becomes insight kind of. और
ये इंसाइट जब बहुत सारे बढ़ जाए और इस इंसाइट को लेके, ये छोटा सा इंसाइट को लेके, मैं दही में नमक डालने की बात कर रही थी, बट दिस इज अबाउट योर वर्कप्लेस. इफ यू कैन एक्सटेंड, जनरलाइज योर इंसाइट into every area of your life, it becomes wisdom, right? And आपके ज्ञान से you understand more now. When you have better insights, better wisdom, you can understand people more. You can understand your workplace issues more. You can understand your colleagues more. You can understand the viewpoint of your boss more. And as a result, you can impact. Overall impact will be more. लोग आपके पास आएंगे क्योंकि आपको ज्यादा समझ आता है. Only that. आप हार्डवर्क करो तो लोग आपके पास नहीं आते. आपको अगर समझ आता है कि दूसरे में क्या प्रॉब्लम है और दूसरे का मन क्यों दुखी है, तो लोग आपके पास आएंगे. अगर आप सुपर एफिशिएंट बनते हो तो आप अपने घर में बनते रहो. Nobody comes to you, right? Then bringing change, navigating ambiguity. ये कोई लोग क्या करता है, इसी की वजह से वर्क प्लेस बहुत बदनाम. वो ये कि उसको वो ना बॉस को जाके समझा देगा, तो बॉस इस पे डिपेंडेंट हो जाता है. ये पर्टिकुलर बंदे को इसको समझ आ रहा है, ये क्या करता है, इसका एक्सपर्टाइज है टू एक्सप्लेन पीपल अपने वे में, in his own way, her own way, they can explain to boss, super boss. बाकी सारे को कोई कुछ समझ नहीं आता. तो आपको वो जो confusion समझ अगर आ रहा है, then you have to bring a change in the entire workplace. तब जाके you will be known. सिर्फ बॉस को पुश करने के लिए नहीं किया भाई. Everybody's for everybody's comfort, for everybody's क्या बोलते हैं, for helping everybody grow more, इसने help किया. So are you doing this? Influence आपको build करना है ना. Are you doing this? Then choice of alternative. इसमें देखिए, आप right choice कभी नहीं कर सकते. अभी देखिए, रिस्क है, प्रोसेस है, रॉन्ग है, प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, क्राइसिस है, फेल्योर है, बैड आइडियाज है. आपको नहीं लगता कि आपके कलीग्स ईच ऑफ दिस एक्सपीरियंस से आए होंगे? किसी के पीछे एक्सपीरियंस एक रॉन्ग आइडिया का था, किसी का बैड आइडिया का था, किसी और का फेल्योर का था, किसी और को कोई प्रॉब्लम था, किसी और ने कोई मिस्टेक किया था, वो एक्सपीरियंस से आ रहा है. ये सारे कोई आज इकट्ठा आपके साथ एसेट है या प्रॉब्लम है? बताओ कोई. इज दिस समथिंग पॉजिटिव फॉर यू और नेगेटिव फॉर यू? यस, नो, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलो. It is positive for us because we can get to learn from their experiences. Yeah, but normally क्या होता है? Normally ये होता है क्योंकि वो लोग, मान लीजिए you are making a choice. Suppose we call it as solution A, right? The other person coming from a different background, different experience, he will say something. He will say, भाई A तो ठीक है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगा. Why not take choice number B? Then the other person doesn't know how to say. ये बोलेगी ये चलेगा ही नहीं, ये bad idea है. Let us do choice number C. Then somebody will bluntly say on your face, क्या बात करते हैं यार, wrong idea, wrong, this is wrong way to proceed, छोड़ो इसको, choice number D. दूसरा कोई आएगा बोलेगा इसमें ये रिस्क है, आपने देखा नहीं रिमोन के टाइम में ये प्रॉब्लम हो गया था. तीसरा बोलेगा फ्लड आ गया तो, फिर चौथा बोलेगा वहां पे ड्राउट हो गया तो, बारिश नहीं हुई तो, कोई बोलेगा इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, रशिया यूक्रेन वार हो गया तो. ऐसे करके लोग आएंगे. सो व्हाट शुड यू डू? आप सारा कोई तो सुनेंगे तो कोई काम कर पाएंगे क्या? बट यू कैन डू समथिंग. यू कैन डॉक्यूमेंट ऑल देयर ओपिनियन. ये सारे लोग ना वेरी स्पेसिफिक
क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। सो डॉक्यूमेंट दैट इज सोल्यूशन ए बी सी डी ई एफ, जो तो कहीं पे मैं पढ़ रही थी ऑल द अल्फाबेट्स इन द, हमारे जो अल्फाबेट्स है ना A to Z, ऑल दोज आर ways to solve a problem. A नहीं चला B कर लेते हैं, B नहीं चला C कर लेते हैं. All your team colleagues will be happy कि नहीं, just because you have documented their opinion, you have taken their opinion into account. आपने कुछ किया नहीं, just you have documented their opinion and won over all your colleagues. Team building फटाक से. Have you thought of this? You should as a manager. Your journey, who you become. ये सारा जो हम बता रहे हैं ना, इतना सारा जो कर रहे हैं, this is what, why I am teaching this, why I am telling people all over and over again. वो तो मैंने कर लिया, आपको क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए बता रही हूँ ना, this is a journey of transformation. आप ये करोगे ना, you become a different person. So all that matters in this world is who you become. जैक कैनफील्ड जो सीक्रेट के एक बंदे थे, उन्होंने बोला कि it is not the result that matters, it is who you become in the process of achieving the result. वो जो रिजल्ट आप करोगे तो डिफरेंट होगा, मैं करूंगी तो डिफरेंट होगा, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है क्या, बट who we become in that process is very important. Similar same is with your colleagues, who they become as a result of this process, right? आपको वो भी दिमाग में रखना होगा. Now, what problems happening now? अभी क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये आप हमेशा लिस्ट करके रखो. Why do you think those are happening? इसका सोल्यूशन भी आप ही लिखो, दूसरे से मत पूछो. If it is your problem, आपको पता भी होगा ना कि रीजन क्या है. जब कोई नहीं सुन रहा है तो आप बोल रहे हो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ना कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये बिगड़ गया, ये टाइम खराब है, ये भगवान नहीं सर, ये सब बोल रहे हो ना. राइट दैट डाउन. आपको खुद पे हंसी आएगी कि आपने ये सब लिखा, राइट, बट राइट दैट डाउन बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर टेलिंग दिस रीजंस टू योरसेल्फ ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. क्या कर रहे हैं उसमें? You are hiding yourself from the solution by creating a world of all the problems and why those have been happening, right? जब आप देखोगे नहीं, सामने आप अपना उंगली रखो, ऐसे उंगली सभी कोई रखेगा प्लीज, सभी कोई वीडियो ऑन करो एंड अब आपकी आंख मुझे नहीं दिखना चाहिए, आपका पाम मुझे दिखना चाहिए. सभी कोई वीडियो ऑन करके रखो ऐसे. हरी कम ऑन, राजीव प्लीज, दारा सिंह, ए लक्ष्मी, रजिया, लक्ष्मी इजनी, कैन यू पुट हियर, कैन आर यू एबल टू सी एनीथिंग एल्स अदर देन योर फिंगर्स? हाँ ना बोलो. Only fingers. Only fingers. So that is the problem that you have kept yourself na in front of that. आप देख ही नहीं रहे हो तो कैसे दिखेगा? And who has brought that hand in front of yourself? You only. मैं मेरा हाथ था क्या? आपका हाथ था. So you are responsible for not able to see the solution. Agree? Yes, no. ठीक है? And how is your work life health? Focus on your productivity. ये देखिए आपको प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम करना है. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है मेरे हिसाब से? सपोज यू हैव 8 hours ऑफ वर्क, राइट? तो आपको अगर 8 घंटे का काम मिला है ना, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो 4 घंटे का काम. बाकी आप खींचते हो उसको, स्ट्रेचिंग करते हो. क्यों खींचते हो? इसलिए कि आपको इससे अच्छा हो सकता है, उससे अच्छा हो सकता है. क्या अच्छा हो सकता है? काम, मतलब सेगमेंट नंबर ए कर दिया. मतलब मान लीजिए कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ राइटिंग समथिंग, रिपोर्ट लिखा. यार ये हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, छोड़ो, फिर से लिखते हैं, फिर से शुरू किया. तो आप सेगमेंट ए से सेगमेंट बी तक गए, राइट? सो
That is where you waste your time. And when you waste your time, कोई बोलता है तो then complain आता है, craving आता है. यहाँ पे एक इंडस्ट्री डेटा आप देख लो, जो भी कंप्लेंट एंड क्रेविंग करता है ना, वो दूसरा सोल्यूशन ढूंढता है कि इससे अच्छा कैसे लाइफ हो. वो वहां नहीं ढूंढता है जहाँ पे प्रॉब्लम है. वो सोचता है कि हम स्विच ओवर कर लेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा. तो जितना वो सीनियर होता है उतना ज्यादा टाइम उसको लगता है दूसरा अल्टरनेटिव मिलने. ठीक है, आप अगर 6 to 12 years ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है तो देन आपको 3 years to 5 years लगेगा टू फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन. तो जब तक आप ये अल्टरनेटिव ढूंढोगे तब तक आप 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे रहते हो. अगर 3 से 5 साल 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे रहते हो तो व्हाट हैपेंस टू योर पोटेंशियल. आप एक पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हो ना, व्हाट हैपेंस, वो पोटेंशियल को आप गला दबा के मार दी. यू मर्डर्ड योर ओन पोटेंशियल. किसी और की कोई गलती नहीं. एंड व्हाट हैपेंस, एक्चुअली मैंने एक मार्केट रिसर्च किया था. यहाँ पे देखिए वर्क प्लेस इश्यूज सारे लेफ्ट में है एंड नॉन वर्क रिलेटेड इश्यूज जो आपके प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है दैट इज ऑन द राइट साइड. नंबर किस में ज्यादा, राइट साइड में, राइट. एंड दोस इफ यू रीड दैट आउट, those are not workplace related habits, right? तो वो कहाँ आपको इफेक्ट कर रहे हैं, मैंने उसको एक सेगमेंट में किया. लाइफ डिसीजंस आपके हैम्पर होते हैं, वर्क डिसीजन तो होते ही हैं. कंपटीशन आपको ज्यादा बड़ा लगता है, कम्युनिकेशन आपका बिगड़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका गया, कलीग्स आपको लगते हैं कि ये भयानक विलियन है आपकी स्टोरी में. लर्निंग स्किल हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका फोकस तो प्रॉब्लम में है. बिग विजन, कोई बात नहीं यार, ये छोटा सा काम नहीं हो रहा है, बड़ा सा काम क्या होगा. मैनेजिंग टाइम सोच ही नहीं सकते. एंड लास्ट में क्या लिखा है मैंने, कंसिस्टेंसी. आज नहीं हुआ ना सही, कल बिल्ड करके देखते हैं, ये तो बात ही नहीं है. कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट एनिमी. 80% लोगों के पास होता है. कंसिस्टेंसी हैड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट. इतने एरिया में आपका लाइफ इफेक्ट होता है. तो आप सोल्यूशन एक ही जगह ढूंढ रहे हो, एक ही जगह ढूंढ रहे हो. इतने एरिया में आपका इफेक्ट होता है एंड देन इट बिकम्स कंपाउंडेड. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि सिस्टमैटिकली इसको अगर अटैक करेंगे देन इट विल गेट रिजॉल्व. इतना बड़ा भी सोल्यूशन नहीं, जस्ट योर माइंडसेट नीड्स टू बी ट्विक्ड a little bit. Figure out a reason. Why should you not want a short solution? बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको बस सॉल्व करो. मुझे वो पूरा दिखता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम ओवरऑल. अभी थोड़ी देर पहले वेंकट को मैं 4 हफ्ते से रेगुलर वी आर टॉकिंग. Still, when it comes to hard work, influence and other, he had a problem. He had problem in understanding time. इसका मतलब क्या हो? He is a very nice person. फिर भी उनकी सोच में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से he is feeling the pain, है ना. तो should we now, it is my responsibility to take that pain out, है कि नहीं? Yes or no? Right? Yes, no. Somebody else should say yes, no. Yes, ma'am. और तो वेंकट बोलने से थोड़ी होता है. ललित बोलेंगे नहीं तो. Yes, yes. So what can be a long-term solution? Some possible or impossible looking solution. बहुत सारे लोगों को लगता है ये हो नहीं सकता. ये जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को, मैं अभी थोड़ी देर पहले ललित भाई से बात कर रही थी तो बोल रही थी, राजीव से भी कल बात हुई थी तो बोला, किसी और से भी बात कर रही थी, सबको बोला कि लोग सोचते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, राइट. और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जो आप बोल रहे हो ना चलेगा, होगा. They don't have patience for going through that solution. So what all you have tried to do. अब मेरी बात मत सुनो, आपने तो कुछ किया होगा ना अपना प्रॉब्लम के बारे में, क्या है? And what has been your experience? क्या सक्सेस मिला आपको और क्या फेल्यूर हुआ, वो लिख सकते हो आप. लिखो
and still why this problem persists. इसका मतलब है कि जहाँ पे आप सोच रहे हो कि वहां पे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम एक्चुअली नॉट देयर, कहीं और पे है जो आपको दिखा नहीं. So that is why a mentor is required. ये थर्ड पार्टी मेंटर कौन होता है? मेंटर इज ए पर्सन. सचिन तेंदुलकर का मेंटर कौन है? रमाकांत आचरेकर. रमाकांत आचरेकर ने कितने सेंचुरी मारे? कोई किसी को पता है कि कितने सेंचुरी मारे थे? He was not a legend, but उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बनाया. क्यों? कैसे? ये मैकेनिज्म को समझिए. Because he has an eye for the technical abilities of the cricketer. सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर था, उनके पास एक ही स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर तो नहीं होगा ना, बिकॉज ही वाज अ कोच. बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, राइट? एंड द बेस्ट पर्सन हु डिड अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन, ही बिकेम सचिन तेंदुलकर ए लेजेंड. उसको मिला था, भगवान से मिला था, जो भी है टैलेंट तो था, उसको उन्होंने जीनियस बना दिया, राइट? वो खुद थे या नहीं थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, but he made Sachin Tendulkar what he is, right? तो ये मेंटर वही काम करते हैं. आप में जो बेस्ट है, देखिए हर एक बंदा, कोई इंसान को आप 100% परफेक्ट देखे नहीं देते. आप में कुछ अच्छा है, बुरा है, मेरे में कुछ अच्छा है, बुरा है. बुरा को अगर आप ठीक करने में लग जाओगे ना, you will waste lot of time. जो आप में अच्छा है उसको निकालो, निखारो, so that you will utilize your strength with which you are born, right? And long term solution के कुछ फायदे हैं. इस कुछ टाइम है, टाइम आप यूटिलाइज बहुत अच्छे से करते हो. You will follow a proven path जो पहले से भी कर लिया, so you don't risk failure once again. Reputation आपका बिल्ड होता है और चॉइसेस आपको मिलते हैं. So which one should you choose, or all of them you choose? कोई सा भी चूज करो, ये रास्ता जाके उन्हीं पे मिल जाता है. ये पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन पे जाके मिलता है. एंड दिस इज माय ब्लूप्रिंट. ये सिंपल सा ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख लीजिए. वेरी सिंपल. हम में से हर एक कोई यूनिकली बॉर्न हुआ है. एवरीबडी इज बॉर्न यूनिक. हमारे जैसा ना पहले हुआ ना बाद में कभी होगा. इज दिस ओके? तो वो जो यूनिकनेस है उसका कितना फायदा हम उठाए, दैट इज अप टू अस. अब उसको प्रूव करते हुए हम अपना रेजिलियंस प्रूव करते हैं. विद कंसिस्टेंसी हम अपना रेजिलियंस प्रूव करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज यूनिक अबाउट अस. दिस इज द सेकंड स्टेप. एंड as soon as people are impressed with something, they get influenced, and that is how we acquire our prominence. अब ये यहाँ पे 4-5 लोग हैं, सभी कोई सेम चीज सुन रहा है, सभी कोई सेम वे में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये इनटेक डिफरेंट हो जाएगा. Why? Because your attitude, habit, action and perception are very different in each of the case. जब आप प्रोमिनेंस पे पहुंच जाओगे, you will be reaching the next level. Next level फिर से डिफरेंस से शुरू होता है. So this is a cycle. ये फिर से चलता है, फिर से चलता है, फिर से चलता है. मैनेजर से जब आप सीनियर मैनेजर हो जाओगे, your game will be starting from again difference level. और वहाँ पे जितने सारे लोग सीनियर मैनेजर लेवल पे आए होंगे, all of them will have different attitude, habit, action and perception. Depending on that, सारे लोगों को एक ही ट्रेनिंग भी मिले तो the next level VP will be just one out of that. वो कैसे चुना जाता है? Attitude is the biggest thing. इस दुनिया में स्किल की वजह से किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया, एटीट्यूड की वजह से निकाला गया, राइट? सो एटीट्यूड इज ए बिग फैक्टर, एंड दिस इज ऑल इज कंटिन्यूइंग इन दिस साइकिल फॉरएवर is what called leadership growth. And the entire technique that you will be learning is called resourceful influencing. So पहले से जहां से स्टार्ट किया, कभी भी आप फंस जाओ कहीं तो ask yourself 3 questions. How do you see yourself?
what you perceive about yourself. Second, what people perceive about you. And third, how people will remember you after you are gone. ये 3 चीजें पूछो, इसके अनुसार आप डिसाइड करो कि क्या करना है. So daily dilemmas in life क्या होता है. अभी जैसे मैंने थोड़ा सा बताया कि जैसे ही आप कम्युनिकेशन इशू, अगर आपका इशू अभी है एंड यू रीच आउट टू ए पर्सन हु टीचेस कम्युनिकेशन, वो क्या आपको बताएगा, राइट, रीड, स्पीक, लिसन. बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि बात ही कर लेने से हो जाएगा, बट अनलेस यू राइट, अनलेस यू रीड, अनलेस यू लिसन, यू कैन नॉट स्पीक. तो ये 4 चीजें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आपको बता देता. लेकिन जैसे मैंने पूछा था, लेकिन आप बोलोगे क्या? सब्जेक्ट तो आप ही को बोलना है ना. रीड करो, राइट करो, स्पीक करो, कुछ तो बोलोगे. क्या बोलोगे? व्हाट इज द सब्जेक्ट? डिसाइड दैट. दैट इज द डेली डिलेमा. क्यों कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता. टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो कोई बंदा आपको बोलेगा कि कैलेंडर बनाओ यार, रोज क्या क्या करोगे लिखो, लिख दिया. बट आपकी जिंदगी में 1000 चीजें हैं, ये कैलेंडर में क्या क्या लिखो? दिन में आपके 100 चीजें आती है, वो कैलेंडर में जगह कहाँ 100 चीजें लिखने की. 100 चीजें लिखोगे भी क्या, कितने काम करते हो? 100 चीजें होती है. 10 भी चीजें लिखोगे, सारे 10 चीजें हो जाती है आपके, कंसिस्टेंटली नहीं होते. सो व्हाट शुड यू पुट इन द कैलेंडर? ये डिलेमा है. सेकेंड. थर्ड इज किसी को अगर प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है तो आपको एक्सपर्ट क्या बोलेगा, छोटा छोटा 5 कोई एक्शन लो. मैं आपको प्रैक्टिकल एक स्टोरी बताती हूँ. कोई बंदा बोला वो बहुत अच्छा लिखता है, तो बोला कि लेकिन लिखता तो हूँ, लेकिन रोज लिखना एक मुश्किल बात है. तो मैंने बोला रोज कितना तुम जब लिखते हो तो कितना लिख लेते हो? बोला कि 5 से 10 पेज तो लिख ही लेता हूँ. तो मैंने बोला कि तुम रोज 1 पेज लिखो. बोला कि यार वही तो प्रॉब्लम है ना, शुरू ही करना बड़ा मुश्किल. तो मैंने बोला 5 लाइन लिख सकते हो क्या? बोला कि क्या बात करो, 5 लाइन लिखूंगा तो 1 पेज नहीं लिख लूंगा, 1 पेज लिखूंगा तो क्या 10 पेज नहीं लिख लूंगा. तो मैंने बोला 5 वर्ड लिख सकते हो? तो जब 5 वर्ड उसको लिखने के लिए बोला और उसका टारगेट है कि रोज उसको कुछ लिख के आर्टिकल देना है, तो ये 5 वर्ड कौन से वर्ड लिखे जाएं जिससे उसका अचीवमेंट हो, राइट? ये डिलेमा है. और कुछ लोग आ जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए. नौकरी में क्या होता है कि 1 पेज रिज्यूमे लिखने के लिए बोला है, मतलब वही पीपल शॉर्टलिस्ट ओनली 1 पेज रिज्यूम जो एकदम क्रिस्प है. हाउ डू, मतलब आपका 16-17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वेंकट के प्लेस में, तो how can he reduce his entire resume into 1 page? That is a skill. Put 3 things in priority if you are overwhelmed with every day's work. सभी कोई बोलता है कि प्रायोरिटी में 3 चीजें रखो, परेटो रूल लगाओ, like say do only those 3 things which will be 20% of your entire जो भी आप करना चाहते हो, which will achieve you 80% result. That is what Pareto rule is. अब ये 3 कौन है, कौन से टास्क है प्रायोरिटी? That is a dilemma. Then be crisp and specific when you are asking for support. बहुत सारे लोग हैं यार मुझे सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए था. दूसरा बंदा बोलेगा कहाँ पे सपोर्ट तुझे चाहिए? आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे सपोर्ट चाहिए. Now how can the other person support you? अगर आप उसको सोचने के लिए बोलोगे कि मुझे कहाँ सपोर्ट चाहिए तो तू सोचेगा? नहीं सोचेगा. आपका प्रॉब्लम है. You have to be very crisp. You are asking for support to somebody else, and what that person will think about you. तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो कैसे सोच सकता है? Many people do commit mistake out here. And this is about communication again. Presentation skill बहुत बड़ा प्रॉब्लम. Communication is about presentation. पीपीटी मैंने बनाते देखा बहुत सारे लोगों को, पूरा भर देते हैं यार, पूरा वो वर्ड से उठा के पूरा चिपका देते हैं यहाँ. That is not what a PPT is. PPT is just an indicator. थोड़ा सा आप यहाँ में हिंट मारो, बाकी सारा बोलो, right? And now, if you permit me,
then I'll tell a little about my story. Is it okay if I tell you? Everybody say yes, तभी बोलूंगी, नहीं तो नहीं बोलूंगी. Yes? अरे yes तो बोलो यार, हो या नहीं हो. Definitely yes. Yes. Okay. राजीव कहाँ चला गया? राजीव. So my journey is about कि अभी तक 18,000 प्रोफेशनल को मैंने ट्रेन किया ऑफलाइन, ऑफ कोर्स 1 crore लाइव्स को इम्पैक्ट किया सिंस 2008 एंड whoever I have trained, जैसे भी जिस भी लेवल पे ट्रेन किया, they are doing great for themselves, like they are not dependent on decision making. और सबके पास whether that person is illiterate or literate, सबके पास 2 स्किल मैंने देखे, 2 से ज्यादा देखे, मिनिमम तो 2 स्किल देखे. राजस्थान में मैंने काम शुरू किया 2008 में, 2 महीने में 44 लाख वुमेन को एन्यूमरेट करना था. 12,000 लोगों को तो वहां पे ट्रेन करके वो 2 महीने में 45 लाख, दैट कम्स टू 25,000 पीपल ए डे वो किया. मेघालय में 2 साल में 239 कॉमन सर्विसेज सेक्टर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में करने थे, वो 2 साल में ऑल ओवर मेघालय किया 2 साल के अंदर. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश का एक क्राइसिस हुआ था, वहां पे मैंने ट्रैक किया हाउ रिपेमेंट इज हैपनिंग, राइट. उसके बाद 4 साल मैंने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास, वहां पे टाइगर रिजर्व है, उसके आसपास के जो एरिया है गांव के लोग, those people were they had food insecurity, मतलब 3 महीने का खाना था एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे डिडंट हैव फूड, तो उनको जंगल में जाना पड़ता था. और जंगल में टाइगर है तो टाइगर से आमना सामना होके किल होता था. सो वहां पे अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सोल्यूशन दिया और 4 साल में वो लोग इतने सफिशिएंट हो गए कि वो बेचने लगे अनाज और भी कुछ करने लगे. ये थोड़ा सा टेस्टिमोनियल है मेरे फ्रेंड्स का, ये सारे कुछ मुझे अवार्ड्स मिले. लेकिन वो लोग, ये बंदा जिसको मैंने ट्रेन किया है वो सीईओ है अभी वहां का, और ये मैंने, मुझे स्टडी टूर में भेजा गया कनाडा इसके लिए. बट वेयर डिड आई स्टार्ट? आई ऑल्सो स्टार्टेड विद द सेम जर्नी व्हाट एवर यू आर फेसिंग, वेंकट. आई ऑल्सो वाज अ स्टार परफॉर्मर. I was saving say 90% of the budget, whatever you are doing right now, whatever my boss told me, whatever my boss intended to do, जो भी उसको करना था वो सारा मैं कर रही थी. इसीलिए that is why I understand you better, you know, when you told me कि 100% सब कुछ करता हूँ, तो then I connected with you कि ये कभी मेरी जिंदगी में हुआ. But I still complain कि सारा कुछ करते हुए भी why people cannot trust me. तो और उसी दौरान ना मैं एक HR वर्कशॉप भी अटेंड की, जहाँ पे एक्चुअली माय बैकग्राउंड इज आई एम ए मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट, आई टोल्ड यू, बट आई अटेंडेड ए HR वर्कशॉप वेयर आई ड्राफ्टेड द HR पॉलिसी, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को तब मैं रिप्रेजेंट कर रही थी दे डिडंट हैव एन HR पॉलिसी. सो आई ड्राफ्टेड डिस्पाइट नॉट बीइंग एन HR प्रोफेशनल एंड इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड. सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिसोर्सफुलनेस कि आपका बैकग्राउंड वो हो चाहे नहीं, इफ योर intention is to serve, you can do. That is what resourcefulness is. आप पहले ही मैं बजट को कर रही थी, like say बजट को सेव कर रही थी. Now I have saved HR, right? So ultimately it is the task that you love rather than the designation. How did I do that? कि राजस्थान में जो 44 लाख वुमेन को किया एन्यूमरेट, हाउ डिड आई लर्न दैट स्किल? इसके पहले मुझे ट्रेनिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. आई वाज ए सोशल रिसर्चर. हाउ डिड आई डू दैट? बिकॉज आई लव डूइंग दैट वर्क, राइट? देन लर्निंग इम्पैक्ट 1. आप सबसे पहले whenever you are learning something, आप पहले सोचो कि how by your learning other people are also getting impacted. कैसे? How your organization is helped,
How can you help your organization with whatever reports you are writing? Because that is the skill you will be developing here. How your insight is helping your organization, how you are communicating, and how more you are able to understand. How boss is helping. Because you understand more now, you are able to do more now, you are supporting your boss. Previously your boss was the only person who was who was responsible. Now you also are there who the boss can trust. Negotiation only your boss was doing, now you can do also. Perspective has become better. That was only the boss's perspective. Now you also bring your perspective to the boss, saying that this might be also the alternative solution. Super boss is help. Boss ka boss bhi help hota hai, because the first thing is he sees that apart from that boss, his junior, you are also coming up as another person. Suppose the boss resigns and goes, then you are the person supporting him. So he also gets help. Right? Able to understand? Colleagues are helped because you are now focused on quick completion. You can help them also. You are the person who is able to help them. You can do handholding because you have time now, because you are a smart worker, and because you are able to help your team. There is a better bonding between you people, team. Then learning impact 2, who you would become. As I told you, attitude, perception, action. So how it helps? Attitude defines your personality. So towards her, you become hardworking. Towards life, towards family, towards surrounding, you become a better person. Habit strengthens your credibility. How it is, that also will learn how it will be. Then learning impact 3 is resume. How to make that one page a resume, which will be very super impressive. Everything, taking everything into account. 4 mein, how to position yourself. See, there is an attitude when we are an employee, boss is the superior thing. That is what we think. But you have to be very independent of your boss also. That is how you become an alternative to your boss. So how do you do that strategic positioning is the 4th thing that you will learn. So there are 5 stages to that. Learning impact 5 is 7 aspects of leadership growth that you will learn, which we already are learning. It is very different for different people. For you, it is something. Somebody else will have some other problems, but there are other things also. Then learning impact 6, you will learn developing characteristics of a resourceful mindset. How you will think of this solution. That is the 6th thing that you will learn. And then already I have told you how all this requires a lot of internal power. So what are those? There is a pattern to how we think, with how you can have a big vision, and how what people are responding, how they are commenting. All that triggers a pattern inside. How to handle that? That you will learn. Then mindfulness, how you will meditate. Meditation is one part of it, but without meditation, without sitting calmly at a place also, as I am talking, as you are talking to somebody, you can practice this mindfulness. That is soul search, I say. Continuous upgrade is process versus result, because the processes will be improved as a result of this. Then this is training your 2nd and 3rd rank people. I have trained, this is an example. She was just an executive, but she is now handles the HR department of a company which has 1,000+ employees. Just an executive. I trained her in that manner. Then joypreneurship is, this is what I call as becoming a subject matter expertise. It also includes whatever skills you have that we can have. You can become a coach, a mentor. That is what I am saying, and I can help you become a coach ultimately from now on. If you think yourself to be a coach, then only you feel that responsibility towards other people. Right? So this is in the tradition of Gurukul. This is
Vivek Mehrotra, you attended his call, na? That day I told you. Yeah. So he is my coach who told me that you actually can coach. Lalit bhai, aap hain? जी. So he is my coach and I cannot forget his contribution in my life. He is काफी junior to me, but what he has seen and how he has mentored me, not in my subject, but how my mindset goes. उनके जैसा कोई नहीं, unparalleled. So his teaching also will come to you through me, and this is his coach, right? So his coach's first stage already I have qualified, and this is another mentor in this group. He is from Singapore. This person is the coach of these people. He is my grand coach. Dada, na, nani, grandfather type ka coach. He is the coach of Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, right? He is my coach. And these are the 12 mentors from whom I am learning. So you are in a Gurukul, learning from all these people through me, right? And this is lifelong. And this is recently in one of this grand coach's workshop, he responded to my answer, my question, and we were together out here. So this certification also I had, ESTA Gold certification from him. My vision is to train 1 lakh super performing global players for a sustainable globe. That is my vision, right? And my mission is impact 1 billion lives with those 1 lakh super performing global players in 139 countries with a multi-billion-dollar enterprise. So I was telling the other day to write this vision and mission statement for yourself also. Working with core values. So all these things you will be learning. What is the resourceful influence path also we will be learning. How it helps you in everyday's life with practical solutions to your everyday problem. And that is what we'll be learning, and the learning every day that we learn. All these are part of the course that I'll be teaching, but it will be designed according to your problem, specifically for you. So my initial course that which you are taking, Venkat, that is of 5,999, and my second level, which comes as a practice course, that is 15,999, and the third level is 49,999. But right now for you, I am giving it to you all the 3 levels in one package only, 5,999, because I wanted to serve, and you have come with a very definitive kind of problem. That is why. So Lalit bhai, you are there, right? So that, are you there? आप इस पे आ जाइए, Zoom पे, video पे आ जाइए, so that I can, everybody else knows. Are you there? Hello. Video पे आ जाइए एक बार. जी. So that is what I was saying, Lalit bhai, कि मेरा पहला लेवल का कोर्स जो है 5,999 पे शुरू होता है, सेकेंड लेवल इज 15,999 एंड थर्ड लेवल इज 49,999. बट अभी वेंकट जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके आया, इसीलिए मैं ये सारा तीनों कोर्स उसको 5,999 पे ही दे रही हूँ, राइट? सो यस, आप म्यूट पे हो, म्यूट पे. दैट्स ग्रेट. नहीं, एक्चुअल में वेंकट सर एक्चुअल में बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा सस्ता पड़ गया. एक्चुअल में बहुत सस्ता पड़ गया है वेंकट सर को. So why I am giving that, ये ऐसे स्पेसिफिक लेके कोई भी आएगा ना, so that person I'll qualify those people and I'll give them this price only, but not for all. तो ये जैसे there is no readiness ना, readiness अगर नहीं है तो फिर उनको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा. So I can teach Venkat in short time. तो पैसा तो टाइम का लगता है. So I know
कि वेंकट जल्दी ही पिकअप कर लेगा, सो छोटा मतलब कम टाइम में हो जाएगा, दैट इज व्हाई आई हैव ऑफर्ड हिम दैट प्राइस। किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, सालों साल लग जाएगा तो फिर तो नहीं चलेगा ना, सो देन आई विल ऑफर देम स्टेज बाय स्टेज, सो दैट इज द थिंग। सो whoever is no ready to एटलीस्ट मेरे कम्युनिटी में आ जाओ, देन व्हाट हैपेंस, रोज मैं फेसबुक लाइव करती हूँ, वेंकट यू कैन टेल दैट, फेसबुक लाइव करती हूँ by taking one of your problems, so immediate problem का solution तो वहां पे मिल ही जाता है रोज, but it is not about the immediate solution as I told you, it takes a long term holistic solution। एक दिन वैसे तो आपको YouTube में भी मिल जाएगा, but by going to the YouTube you will not get your solution, right, and that hand holding will not be there, so I'll be watching because you will be interacting with me, and as I told you, ये सचिन तेंदुलकर का रमाकांत आचरेकर वाला जॉब होगा मेरा, and that is how the journey goes। So as I said, it is right now at 5999, so anybody comes to my community, they go to my VIP group in Facebook, और वहाँ पे रोज का ट्रेनिंग होता है, that is it। So thank you for coming here, and whoever decides Venkat, you can talk to them and they can come, right? Yeah, sure। So, yeah, I'll recommend it strongly। डायमंड साहब समझिएगा इस चीज को। कई बार हमें लगता है कि शायद मतलब यार पता नहीं क्या सिखाया जाएगा क्या नहीं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड, इट्स अ फैंटास्टिक। मतलब जैसे मैं मैम के तो टच में रहता ही हूँ, जैसे इनफैक्ट मैं कई बार कई चीजें मैं मिस कर जाता हूँ ड्यू टू माय डेली रूटीन, बट ये जिस तरीके से गाइड करते हैं, दैट्स ऑसम। एक्चुअल में जिसे कहते हैं ना, एक्चुअल में 1-to-1 जिसे कहते हैं ना कि अच्छे से सिखाना, मैंने आज लिखा भी इनफैक्ट, अगर आप मेरी चैट दिखा सकें मैम तो जरूर दिखाइएगा। मैंने इनफैक्ट लिखा है मैम को कि यू आर माई एंजल। वो कहते हैं ना आर्कएंजल माइकल होता है ना, वो जो सपोर्ट करता है, आप समझते होंगे, आर्कएंजल माइकल होता है जैसे, शी इज माई एंजल। मैं कई बार जैसे माइंड से स्किप हो जाता है बिजनेस मीटिंग्स की वजह से कोर्स को अटेंड करना, तो मतलब वो मुझे फोन करते हैं कि ललित प्लीज आप आइए अटेंड करिए। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी, शी वॉज गाइडिंग, मतलब बहुत प्यार से, जिसे कहते हैं ना यार कि एक टीचर को जिसे कहते हैं ना एक्चुअल टीचर जो होता है, she is Ramakant Achrekar, we can say। and I promise कि बेशक सचिन तेंदुलकर में कोई ब्लेसिंग्स रही होंगी, या मैं कहूँ कि माइट भी उनके अंदर कोई ऐसी स्किल भगवान ने दी होगी कि वो सचिन बन गए, बट आई प्रॉमिस अगर आप ग्रैब करते हो ना, तो आप एक्चुअल में चाहे भगवान ने ब्लेसिंग्स दी है या नहीं दी है, क्वालिटी दी है या नहीं दी है, यू 100% विल गेट। मैम वो कोच हैं, वो गाइड हैं, वो एंजल हैं जो आपको हर प्रॉब्लम से निकालने का, जिसे कहते हैं ना, मादा रखते हैं। आई प्रॉमिस, मतलब एक्चुअल में है यार ये। थैंक यू सो मच। सच्चाई बता, देखिए मुझे एक पैसे का कोई बेनिफिट नहीं है, बिलीव मी, मतलब मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बट जो मैम गाइड करते हैं, जो मैम केयर करते हैं, आई लव दैट। मीन्स यार सीरियसली आज का टाइम में कौन करता है, और जबकि मैंने कुछ सिंगल पेन ही नहीं दे रहा, मतलब एक पैसा नहीं दे रहा मैं मैम को, एक्चुअल में नहीं दे रहा, बट एक्चुअल में सही बताऊं, शी इज वेरी जिसे कहते हैं ना केयरिंग, बहुत अच्छी गाइड है, बहुत अच्छी टीचर है, शी इज यानी कमाल की है, सच्चाई बताऊं मैं आपको। सो डोंट मिस, एक्चुअल में डोंट मिस यार, समझिएगा। वेंकट आ गया इसमें, एक्चुअली अदर पीपल आल्सो नीड टू कम, तो एनीवेज वो वेंकट को देख के बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो ठीक है, मिस ही नहीं करना चाहिए मैम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मिस ही नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच हरि प्रसाद फॉर कमिंग, रजिया यू बीइंग देयर, सो आई विल सी यू in the next courses na, so I'll send you that link, Venkat, you can send them also, so that they also can come to my list and also come to my VIP Facebook book,
and they also should subscribe to the YouTube channel so that they get continuous support. And if they come to this community and to my class, nothing like it. But I'll be waiting for that. Thank you so much for attending, and please confirm in a day or two about your decision. That will be helpful. Thank you so much for attending this class. Thank you. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. God bless you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.